Assalamu alaikum ladies and gentlemen. Today my topic is highly important. The name of today topic is locations. Location play a key roles. No doubt overall Pakistan has a very attractive and beautiful geo-strategic location in the world. Location play also a key role while making the homes. Worldwide location can be defined as that it is to be circulated by four directions. One is the north, other is the south, third is the east, and four is the west. These four directions are called the primary directions that play a key roles. Hi guys, every directions play a key roles. For example, if we discuss about Pakistan, first of all towards the north of Pakistan's mountains are located. These mountains are located toward the north and northwest of Pakistan's, and they have highly valuable. For example, had these mountains not been there, there would have been severe cold in Pakistan's. These mountains are also play a key role in improving all over the economy of Pakistan. For example, these mountains provide a source of tourism industry. There are multifarious recreational opportunities in these mountains ranges of Pakistan. Along with this, their scenic beauty also attracts to various peoples of the foreign and domestic countries of the world. They also play a key role while making homes. They also play a key roles for providing building materials. In South Asia, Pakistan has a large number of good, well-furnished GT roads and motors. It is only due to the long mountain ranges which are located toward the north and northwest of Pakistan. Similarly, comparatively to the north, the south area of Pakistan is also highly valuable. The south of Pakistan is the south of Pakistan has the Arabian Sea. The Arabian Sea is a part of Indian Oceans. Through Arabian Sea, Pakistan is to be linked by sea route throughout the whole world. No doubt, ladies and gentlemen, had there been no seas, then Pakistan would be declared as a landlocked country of the world, like अफ़गानिस्तान. सी रूट्स जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं दुनिया के अंदर. एज़ यू नो दैट के पानी का जो हिस्सा है, पानी का जो शेयर है वर्ल्ड वाइड वो 71% है, और जो लैंड का पार्ट है वो ओनली 31% है. तो अगर देखा जाए, अगर वर्ल्ड वाइड जाना है, अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करनी है, हमें दुनिया के अंदर अपने माल को भेजना है, तो हमें सी रूट्स जो है ना उनका इस्तेमाल करना होगा, वर्ल्ड वाइड जाना होगा. तो मैं कहता हूँ कि आई थिंक इट इज़ द गुड लक ऑफ पाकिस्तान दैट पाकिस्तान हैज़ अ सी रूट्स. और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान आल्सो प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ टू दोज कंट्रीज़ हु हैव नो सीज़, हु आर लैंड लॉक कंट्रीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो अफ़गानिस्तान है वो पाकिस्तान के ऊपर रिलाय करता है. पाकिस्तान जो अपना सी पैसेज है उसको इस्तेमाल करने के लिए देता है. उसका जो माल है अफ़गानिस्तान का वो पाकिस्तान में आता है, और बाय रेलवे जो है वो हम अफ़गानिस्तान में भेजते हैं. सिमिलरली जो ईस्ट है, ईस्ट आल्सो प्ले अ की रोल्स. टुवर्ड द ईस्ट ऑफ पाकिस्तान इंडिया इज़ लोकेटेड. अनफॉर्चुनेटली सिंस द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, Pakistan has no good relation with India due to multifarious factors. For example, Kashmir disputes, water disputes, and the war of 1965s, and after that the creation of Bangladesh. These were the factors which were highly responsible, due to which Pakistan has not good relation with India towards its east. Towards the west of Pakistan, Iran is located. Pakistan has good cultural, traditional and Islamic relation with this country. Iran was the only country who first of all accepted Pakistan when Pakistan came into being. Ladies and gentlemen, ये जो मेरा लेक्चर था ये ओवरऑल जो लोकेशन थी ना एक मुल्क की उसके बारे में था.
अब मैं एक ना आपको बहुत दिलचस्प बात बताने लगा हूँ. आई एम गोइंग टू डिस्कस यू विद वेरी इम्पॉर्टेंट टॉक्स अबाउट द लोकेशंस. लोकेशन जो है, जब आप एक घर बनाते हैं, जब आपने रहने के लिए जहाँ आप एक मस्कन आपका होता है, जहाँ आप सुकून करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उसके बनाने में भी जो लोकेशन है उसका बड़ा रोल है. मिसाल के तौर पे जो कंट्रीज़ इक्वेटोरियल जोन पे हैं, द कंट्रीज़ विच आर लोकेटेड 5 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 5 डिग्री टुवर्ड्स साउथ of the equator, these countries are called the equatorial countries of the world because they are located in the equatorial zones. Ladies and gentlemen, as you are looking behind of me, a beautiful bungalows which was made by British before the creation of Pakistan. तो ये जो bungalows है, ये बहुत खूबसूरत जो लोकेशन है घर बनाने के लिए, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक नमूना है, एक डिज़ाइन है. अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह उन्होंने ये डिज़ाइन जो था क्रिएट किया था और वो लोग कितने वेल अवेयर थे इस लोकेशन के बारे में. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये देखें, ये जो बेंगलोज है ये इस तरह बनाया गया है कि इसकी जो डायरेक्शंस है वेंटिलेशंस की, वो नॉर्थ से साउथ रखी गई है. और यहाँ पे 3 दरवाजे हैं इसके जो फ्रंट पे हैं, और हर दरवाज़ा जो है वो बैक पे लिंक कर रहा है और उसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऐसे ही है. ये देखें, ये दूसरा दरवाज़ा है और इससे अगर हम देखें तो वो बाहर को भी हमें नज़र आ रहा है. यानी हम बेंगलोज के बाहर भी जब निकलते हैं तो बाहर, यानी यहाँ से अगर हवाएं नॉर्थ से साउथ में चलती हैं, यानी जब भी घर आप बनाएंगे तो बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने जो दरवाजे हैं या जो खिड़कियां हैं उनकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ से साउथ में रखेंगे, क्योंकि जो हमारे यहाँ हवाओं का रुख होता है वो ज़्यादातर नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ होता है. मिसाल के तौर पे नॉर्थ में माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, बर्फ़बारी होती है, बारिशें होती हैं, वहाँ से हवाएं आती हैं, वो नमी से भरी होती हैं और उनकी डायरेक्शन जो होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है. और गर्मियों में जो हवाएं आती हैं वो साउथ से नॉर्थ को जाती हैं. तो इसका मतलब हुआ कि ये जो घर है या ये जो बेंगलोज बना था, इसमें अगर बिजली नहीं भी है तो लोग सर्वाइव कर सकते हैं, हबस नहीं होता. अब देखें, हम आपको तीसरा दरवाज़ा इसका जो है वो लेके चलते हैं, वो दिखाते हैं. अब वो देखें पीछे नज़र आ रहा है कि आप इधर से अगर इंटर होते हैं ना तो इस बेंगलोज को क्रॉस करके नॉर्थ से साउथ में आप पीछे भी चले जाते हैं. यानी जो हवा है उसकी असेस जो है वो आसानी से नॉर्थ से साउथ में है और उसकी रेजिस्टेंस नहीं है. यानी पूरी बिल्डिंग के अंदर जो है वो गर्मी नहीं होगी, हबस नहीं होगी, घुटन नहीं होगी. लोग जो हैं वो यहाँ से सुख का सांस लेंगे, दे फील ईजीली एंड कंफर्टेबली. अब लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब मैं आपको ये दिखाऊं कि सूरज के ग़रूब होने का मंज़र है. कोई आधा पौने घंटे के बाद सूरज ग़रूब हो जाएगा, वो वेस्ट साइड में है. तो होता ये है कि जब सूरज सुबह को राइज़ होता है तो राइज़ होने के लिए जो हम वो लोकेशन आपको देते हैं. तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये बेंगलोज का ईस्ट साइड है, क्योंकि सूरज ने सुबह यहाँ से जो है चढ़ना है. सूरज जो सुबह यहाँ से तुलू होता है, राइज़ होता है, और ये वो टाइम होता है सुबह को 5:30 से जो 9 बजे तक होता है. वो सूरज की इतनी गर्मी नहीं होती, इतना जो है वो हबस नहीं होता. लेकिन जो 10 o'clock है, 10 o'clock के बाद 12 o'clock और 2 बजे तक जो सूरज है वो बिल्कुल सीधा आ जाता है. अगर किसी भी घर की डायरेक्शन में आप ईस्ट साइड पे दरवाजे रखते हैं, आप ईस्ट सिमत में खिड़कियाँ रखते हैं, तो वो सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक उसके अंदर जो हीट है, सन रेज़ जो हैं वो पड़ती रहती हैं. घर के अंदर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता रहता है, गर्मी जो है वो जाने का नाम नहीं लेती. तो वहाँ जो है वो घुटन फील होती है, वहाँ जो टेम्परेचर है वो राइज़ पे रहता है. अब लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब ये होता है कि जब 2 बजते हैं ना, आफ्टर 2 o'clock सन इज़ टू बी ओवर द हेड ऑफ एवरी मैन. हम जहाँ भी ओवर द लेवल लैंड, हम वेयर एवर वी गो, ज़मीन पे हम कहाँ भी चले जाएं तो सूरज जो होता है ना वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है. वो होता ये है, तो होता ये कि जिस तरह के बेंगलोज बनते हैं जो नॉर्थ से साउथ में खिड़कियाँ विंडो रखते हैं,
उनके सिर्फ 2 से लेकर 4 या 5 बजे तक जो सूरज है वो भी ऊपर ना छत के ऊपर होता है। ज़्यादा जो उसकी हीट होती है, जो सन रेज़ पड़ रही होती हैं डायरेक्ट, वो ऊपर को पड़ रही होती हैं, वो साइड से या विंडो से, क्योंकि इसकी साइड्स पे जो दीवारें थी वो बड़ी बड़ी बनाई गई थी जो रेजिस्ट करती हैं। और इसी तरह अगर वेस्ट साइड में घर के आप ज़्यादा विंडो रख देते हैं, आप वेस्ट साइड में ज़्यादा डोर रख देते हैं, तो 3 से 4 बजे के बाद जब सूरज जो है वो वेस्ट साइड की तरफ जाना शुरू कर देता है, अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जाता है, तो वहाँ से जो सन रेज़ होती हैं वो जो विंडोज़ वहाँ लगी होंगी या डोर लगे होंगे उनके ज़रिए से वो डायरेक्ट घर में पड़ रही होंगी, और उस घर में जो है ना हबस या गर्मी जो है वो जाने का नाम ही नहीं लेगी। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये बेंगलोज़ है, बहुत ही खूबसूरत है। और एक चीज़ देखी गई है कि इसकी ये जो दीवारें हैं ये बहुत बड़ी मोटी बनाई गई हैं, इनकी विड्थ ज़्यादा है, और ये इसकी जो डेप्थ है वो भी बहुत ज़्यादा बनाई गई थी, इसीलिए ये सर्वाइव कर रहा है। कितने साल हो चुके हैं और अभी तक ये सर्वाइव हो रहा है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये इसका पहला दरवाज़ा है जो कि नॉर्थ से साउथ है। ये इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, अगर हम इसके अंदर जाएं, इसको देखें तो काफ़ी खुला कशादा है, और इसकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। जो आज नॉर्मल घर बनाए जाते हैं उनसे ये 1.5 गुना ऊपर है। और ये देखें, ये नॉर्थ से साउथ में जो दरवाज़ा है ये आ रहा है, ये दूसरा दरवाज़ा है जिससे हम इंटर हो रहे हैं नॉर्थ से साउथ में, यानी हवा उधर से आएगी फिर इधर से गुजर जाएगी, और आगे से ये फिर थर्ड है डोर, यानी हवा नॉर्थ से साउथ में। अगर गर्मियों में हवा यहाँ से चलती है, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर जो है साउथ से नॉर्थ चलती है, तो वो हवा जो है घर के साउथ से आएगी और नॉर्थ से गुजर जाएगी। तो इस तरह लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये घर का बेंगलोज़ का तीसरा दरवाज़ा है, और इसकी भी डायरेक्शन ऐसे ही है कि आप एक दरवाजे से नॉर्थ के सिमत में जाते हैं, इंटर होते हैं, और आप अगर ट्रैवल करते जाएं, ये अंदर का इसका मंज़र है, बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल सेम, हाइट भी ज़्यादा है, दीवारें इसकी चौड़ी हैं, और ये इसका दूसरा दरवाज़ा है। दूसरे दरवाजे से ये तीसरा दरवाज़ा है, सेम वही लोकेशन है, वही वेंटिलेशन है। हवाओं की सिमत जो है वो नॉर्थ से साउथ हो या साउथ से नॉर्थ हो, कोई कंसर्न नहीं है, हवा का गुजर हर सूरत में होगा, हबस बिल्कुल नहीं होगा। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये तीसरा दरवाज़ा है जहाँ से हम इंटर हो रहे हैं, इसकी भी सेम वही डायरेक्शन है, नॉर्थ से इंटर हो रहे हैं। आगे ये हम कमरे में इंटर हो गए हैं, कमरे में इंटर होते हुए ये दूसरा दरवाज़ा है, दूसरे से ये आगे फिर तीसरा दरवाज़ा, यहाँ से हवाएं जो हैं वो बाहर चली जाती हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरी इस वीडियो का मकसद ये था कि जो हम इतना ख़र्चा करते हैं, ईंटें जो हैं वो काफ़ी महंगी हैं, पैसे लगाते हैं, हम ठेकेदार को लाते हैं, हम मज़दूर को लाते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर देखना चाहिए, उस घर की लोकेशन देखनी चाहिए, उसको प्रॉपर वेंटिलेशन देनी है, उसकी नॉर्थ और साउथ को देखना होगा, ताकि ये ज़िंदगी भर की बचती होती हैं, लाइफ टाइम सेविंग्स हैं। ये जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, जो सन की जो रोशनी है, उससे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। आज की जो बड़ी बड़ी लाइट्स हैं, एनर्जी सेवर हैं, जो डिजिटल लाइट्स हैं, अगर आप प्रॉपर वेंटिलेशन देंगे तो उस घर में अंधेरा रहेगा ही नहीं। जब रोशनी ज़्यादा होगी तो बहुत सारे जर्म और माइक्रोज जो बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको आसानी से किल किया जा सकेगा, हीट से, सन रेज से। दूसरा, सेकंड, जब आप इस तरह की डायरेक्शंस देंगे तो घर देखने को खूबसूरत लगेगा। वहाँ के रहने वाले जो हैं वो लाइफ इजी लेंगे, उनको हबस नहीं फ़ील होगा, गर्मी नहीं फ़ील होगी, और घर के अंदर वो जो है ना वो आसानी से रह सकेंगे। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है वो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसमें बहुत सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, लोकेशन क्या होती है, पाकिस्तान की लोकेशन जो है उसको देखा जाए। ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, अल्लाह ताला के ये असूल हैं। जिस तरह के सन जो है वो
ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में उसने जाना है। हवाओं का रुख नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ है। तो हमें अल्लाह ताला की ये जो दी हुई नेमतें, ऑल दीज ब्लेसिंग्स जो हैं, वो इनसे हमें बेनिफिट्स लेना है। देखें, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले जो ब्रिटिश थे, उनकी देखें, उनकी टेक्निकली दे आर हाईली अप्रिशिएबल, दे आर मोर इंटेलिजेंट्स। इन चीज़ों को उन्होंने गौर से देखा, ऑब्ज़र्व किया और इस तरह के स्ट्रक्चर जो थे उन्होंने खड़े कर दिए हैं। तो ये हमारे लिए एक मॉरल है, ये लेसन है। आए, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देख के रिलैक्स होंगे। इस वीडियो को देख के आपको बहुत सी जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।